Hello students, in the previous online lecture we learn about the singly linked list all type of algorithms. Now let us learn or we can say see the program of the singly linked list. Yes, first we have to include three header files. First two are the known files, we can say studio and conio.h, and extra file are we can say malloc.h for the malloc function for the memory allocation. Yes, struct link, here we declare the structure with the name link and we provide integer data. Yes, and we given a struct link star next. This pointer will indicate the pointer of the next node. Yes, and brackets over, and we give the whole structure name as a header. Yes, or we can say this structure name, alias name is star header. Star means what? It is a pointer type of variable, is equal to null. Integer main, let us see the main, or we can say void main or integer main. Okay, I change as a void main. Now let us see, integer choice is equal to 1. We declare the various procedures: insert begin, insert mid, insert end, insert delete, insert sort, delete, view. While ch is less than or equal to 6, then we have to print the menu, or we can say display the menu. After displaying the menu, we input the choice by the user. Yes, or a user can enter the choice. Here we have a scanf, and if condition we have a ch is equal to 1, means what? Choice is equal to 1, then we have to call ins begin. Else if choice is equal to 2, then we have to call insert mid. If the choice is equal to 3, then we have to call ins end. Else if we have to call delete, and if the choice is 5, then we have to call sort. Else if choice is equal to 6, then we have to call view. Yes, so these are the, we can say, main calling things inside the void main. Yes, now let us see void begin, what the happening inside the void ins begin. So we have a structure link star node, means what? We are going to create the new node as we created inside the algorithm. So for the creating the node, we require the pointer type of variable. Yes, so with the structure name struct link. Yes, and star means what? It is a variable of this particular structure. Yes, and star indicates it is a pointer type of variable. Yes, and then this pointer type of variable we require the memory. Yes, so in the algorithm we use get node function. So instead of the get node, in the programming of the C, we have to use malloc function. Yes, for the malloc function we have to give the typecast. Yes, so हमें यहाँ पर typecast करना पड़ेगा struct link star, and we give the malloc 1 into size of struct link. So क्या होगा, यहाँ पर जो भी लिंक का साइज है, स्ट्रक्ट लिंक का साइज है, वो यहाँ पर इंटू 1 होगा, यानी कि 1 मेमोरी के लिए या 1 नोड के लिए जितना मेमोरी रिक्वायर्ड है वो नोड को अलोकेट होगा. यस, नाउ लेट अस सी नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. इनिशियली वी declare the node next is equal to null. We have to check the condition node is equal to null, means what? If the no memory is found, then it will return null. Yes, if no memory found, then we have to print the memory is full and return. In the else part we can do printf enter the item to insert. Yes, and we scan the node by using the ampersand symbol, node of data. Yes,
It is a dash and greater than sign, and we can say this can access the member variable of the node variable, can access the member variable of the struct. So inside the struct हमारे पास क्या था, डेटा टाइप का वेरिएबल था. सो हमने यहाँ पर नोड डेटा लिखा है. यस, तो जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे वो नोड डेटा के अंदर जाएगा. अभी क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द एल्गोरिथम्स. यस, नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, हेडर, और वी कैन से हेड. यस, and header is equal to what, node. Yes, simply we make the link of the next node. Okay, now let us stop this particular thing. I want to say that I open the old program. So hello student, प्रोग्राम वापस से देखते हैं. यहाँ पर मैंने हेड ले लिया है, हेड इज इक्वल टू नल, हेडर पॉइंटर निकल गया है. यस, मैंने नया प्रोग्राम ओपन किया है. यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या किया है. इसके अंदर मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है जो मैंने एल्गोरिथम में लिखा था. यस, सो यहाँ पर कैसे लिंक बनेगा, नोड का नेक्स्ट क्या होगा, हेड का जो नेक्स्ट है वो. यस, और हेड का नेक्स्ट क्या होगा, नोड होगा. सो बिगिनिंग में हम हेड पर बिगिन में हम नोड को इंसर्ट करने वाले हैं. तो पहले हम नोड का नेक्स्ट बनाएंगे. नोड का नेक्स्ट इनिशियली क्या होना चाहिए, जो हेड का नेक्स्ट है, और हेड का नेक्स्ट क्या होगा, नोड होगा. सेम वे वॉइड इंसर्ट मिडल. मिडल के अंदर कैसा होगा, हम बोल सकते हैं हमने पॉइंटर, टेम्पररी पॉइंटर ले लिया है, नोड CRNT एंड प्रीवियस. यस, यहाँ पर हम चेक करेंगे, नोड को मेमोरी एलोकेट करेंगे, नोड का डेटा इंसर्ट करेंगे, नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल रखेंगे. यस, और डायरेक्टली हम यहाँ पर चलते हैं, CRNT इज इक्वल टू हेड. अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, CRNT का नेक्स्ट नल है या नहीं, एंड CRNT का नेक्स्ट का डेटा लेस देन इक्वल टू नोड डेटा है या नहीं. ये कैसे एल्गोरिदम के अंदर इंसर्ट करेगा, सॉर्टेड जो एल्गोरिदम है या सॉर्टेड जो हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है उसके अंदर पर्टिकुलर पोजीशन पर अपने आप डेटा को इंसर्ट कर देगा. यस, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो CRNT यानी कि करंट पॉइंटर मूव नेक्स्ट करेगा. सो CRNT इज इक्वल टू CRNT नेक्स्ट होगा. यस, CRNT नेक्स्ट, एंड लूप ओवर होने के बाद हमें क्या करना है, नोड का नेक्स्ट क्या होगा, CRNT का जो नेक्स्ट है वो, और CRNT का नेक्स्ट क्या होगा, नोड होगा. यही सेम चीज़ मैंने जो एल्गोरिदम में आपको दिखाया था वही सेम मैंने यहाँ पर फॉलो किया है, सारे पॉइंटर्स. यस, वहाँ पर न्यू हमने लिया था नोड, यहाँ पर हमने डायरेक्टली नोड का नाम क्या रख दिया, नोड रख दिया, न्यू का नाम नोड रख दिया. सो बाकी के सारे पॉइंटर्स और मूविंग जो है वो सेम है, खाली नया क्या है, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको प्रोग्राम कैसे करना है वो चीज़ नया है. बाकी का जो इंसर्ट एंड है, डिलीट है, यस, और व्यू है, जो मैंने आपको समझाया था वही सेम चीज़ यहाँ पर है. यस, यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है. एक चीज़ है जो सॉर्ट यानी कि वॉइड सॉर्ट. ये सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर. सॉर्टिंग के लिए हम यहाँ पर दो पॉइंटर ले लेते हैं, CRNT एंड CRNT1. यस, क्योंकि सॉर्टिंग के अंदर कैसा होता है कि वैल्यू मैच होता है विद द नेक्स्ट वैल्यू. यस, अगर वैल्यू वी कैन से बड़ा है तो हम वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं और जो भी हमारा वैल्यू है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हम ला सकते हैं. यस, सो यहाँ पर मैंने लिया है CRNT इज इक्वल टू हेड, वाइल लूप में जाएगा, CRNT का नेक्स्ट नल नहीं है तो CRNT1 का पॉइंटर हमें असाइन करना है. CRNT का 1 का पॉइंटर क्या होगा, CRNT का नेक्स्ट का जो है यानी कि CRNT का जो नेक्स्ट नोड है वो CRNT1 बनेगा. यस, ये वही सेम लूप है फॉर I इज इक्वल टू 1 एंड फॉर J इज इक्वल टू I+1. वही सेम लूप है. फॉर एग्जाम्पल ये I वेरिएबल है तो ये J वेरिएबल है.
यस, यहाँ पर हम लूप में चेक करेंगे CRNT1 नल है या नहीं है तो लूप में इफ कंडीशन में जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा CRNT का डेटा ग्रेटर और इक्वल टू CRNT का 1 का डेटा से है या नहीं। अगर ग्रेटर है तो हमें वैल्यू को एक्सचेंज करना है। वैल्यू एक्सचेंज कैसे करते हो आप सॉर्टिंग के अंदर? t इज इक्वल टू a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j इज इक्वल टू t। वही सेम है, t इज इक्वल टू a ऑफ i यानी कि CRNT का डेटा। यस, a ऑफ i इज इक्वल टू यानी कि CRNT डेटा इज इक्वल टू a ऑफ j क्या होगा? CRNT1 का डेटा। सेम वे यहाँ पर CRNT के 1 के डेटा में क्या जाएगा? t जाएगा। यस, ये सारे लूपिंग कंसेप्ट जो a ऑफ i है, a ऑफ j है, वो आप सब कुछ सेम 1 सेम 2 में पढ़ ही चुके हो। यस, ये पॉइंटर CRNT1 पॉइंटर का मूव नेक्स्ट करने के लिए ये पॉइंटर हमने लिया है। और ये किसके लिए है? ये आउटर लूप के लिए है। ये इनर लूप के लिए पॉइंटर था, इतना पार्ट, और ये CRNT इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ CRNT। सो ये पॉइंटर नेक्स्ट मूव करेगा तो हमारा डेटा पूरा सॉर्ट हो जाएगा। नाउ हम रन करके देखते हैं कैसे रन होता है, वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पर टर्बो सी प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ। यस, मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यस, सो BCA के अंदर मैंने फोल्डर एक बनाया है मेरे प्रोग्राम के अंदर, DS के अंदर न्यू प्रोग्राम करके होना चाहिए। यस, और इसके अंदर खाली एक ही फाइल मैंने रखा है, डेट इज़ अ सिंगल। ओके, रन दिस प्रोग्राम, इंसर्ट एट बिगिनिंग। अभी हम डिस्प्ले करेंगे। पहले मैंने नोड ऐड किया 10, उसके बाद मैंने वापस से बिगिन में ऐड किया 5। अभी इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। यस, 5 और 10। मैं मिडल में डेटा को इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। तो कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए? 5 के पहले। यस, सो व्यू करूँगा तो 5 के पहले 1 इंसर्ट हो गया। वापस से मैं डिलीट करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे को डिलीट करना है 5। व्यू करूँगा, सो मेरा डेटा 5 डिलीट हो गया, 1 और 10 ही डिस्प्ले कर रहे हैं। वापस से मैं इंसर्ट एट एंड कर दूँगा, लाइक मैं इंसर्ट करूँगा 2, वापस से इंसर्ट एट एंड करूँगा 4, 5। यस, व्यू करूँगा तो मैं देखूँगा यहाँ पर जो मेरा डेटा है 1, 2, 10, 5 एंड 4 वो अनऑर्डर में है। मैं इसको सॉर्टिंग कर दूँगा। यस, सो आप लोग देख सकते हो सॉर्टिंग हो गया, लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ। डिस्प्ले के लिए 6 ऑप्शन है। सो अभी यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गया। सो ऐसे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यस, इट इज़ वेरी इजी। अगर आपके पास मशीन है तो आप प्रोग्राम को टाइप करो, रन करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यस, सो फॉर दिस थैंक यू सो मच।